Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Amanullah, your social studies teacher. I hope you will be fine. Today we will discuss in detail the chapter number 8, which is farming problems in Pakistan. The contents of this lecture include its effect of water on farming, effect of fertilizer on farming, effect of salinity on farming. In the previous lecture, we discussed two main farming problems in Pakistan, which were area and poor quality of animal and seeds. In farming problems related to area, we studied that what kind of problems faced by the farmers in farming different areas, like harvesting done by hands, plowing is done by bullocks, in small farming lands, especially in villages, and in farming problems related to poor quality of animals and seeds. We discussed that small farmers would not buy new and improved seeds, and they save their own seeds and breed their animals locally. The government tried to do their best to provide their small farmers with the improved seeds which give better crops and animals which give more milk and meat. Let's discuss what we'll be able to know at the end of this lecture. The objectives of today's lectures are how farming is affected by water, how water is supplied to bigger farm, and how Pakistan irrigation network is enough for Pakistan farming, and how water reaches to plant by these irrigation system. What are fertilizers and why fertilizers are required for the farming? How farming is affected by fertilizers? What is salinity and how crops are affected by salinity? How to avoid salinity? Now we are going to start the first topic of today's lecture, which is water. First, we will see that how water is supplied to farms in Pakistan. The main source of water for Pakistan farming is Indus River and many different dams and barrages are built to store water. From these water stored places, it is supplied to farms via the canal and tube wells, etc. Now we will discuss the effect of water and Pakistan farming. Improper distributions of water in different regions. इसमें कुछ लोग अपने इलाके में ज्यादा पानी अपने खेतों को बचाते हैं या कुछ खेत जिनको नहर वगैरह की सहूलत नहीं मुहैया की जाती है, जिस वजह से पानी को मुख्तलिफ खेतों में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट
नहीं किया जाता। वाटर लीकेज फ्रॉम कैनाल्स, जिन कैनाल्स से खेत को पानी पहुंचाया जाता है उनमें लीकेज की सूरत में बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया हो जाता है और जो पानी फसलों के लिए इकट्ठा किया जाता है वो ज़ाया हो जाता है। लेस रेन्स, बारिश कम होने की सूरत में खेतों को पानी कम मिलता है और समटाइम एक्सेस रेन इन डिफरेंट रीजन्स, कुछ फसलों को जिनको मजीद पानी की ज़रूरत नहीं होती वो ज़्यादा बारिश आने की वजह से आने की सूरत में वो फसलें ख़राब हो जाती हैं। Some canals are not properly cleaned, which affect the farms badly. कैनाल को अच्छी तरह साफ नहीं किया जाता और लोग कूड़ा क्रिकेट कैनाल्स में फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक वक्त ऐसा आता है कि कैनाल्स का वो पानी फसलों के लिए नुकसानदेह हो जाता है और इसलिए कैनाल की प्रॉपर क्लीनिंग बेहतरीन फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। वायलेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस रिवर को किंग ऑफ रिवर कहा जाता है। पाकिस्तान फार्मिंग का ज़्यादातर हिस्सा इस दरिया के पानी से सैराब किया जाता है और ये दरिया इंडिया से गुजर कर आता है। पाकिस्तान और इंडिया का मायदा हुआ है कि वो इस दरिया के पानी को नहीं रोकेंगे, इसलिए जब इस दरिया के पानी को रोका जाता है तो इंडिया की जानब से और मायदे की खिलाफ वर्जी भी की जाती है, जिसके बाद पानी को अचानक खोल दिया जाता है जो कि सैलाब की सूरत में बहुत से इलाकों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान इरिगेशन नेटवर्क, बाय इरिगेशन वी मीन्स हाउ वाटर is supplied to the farms. It is done in 3 steps. Step 1, main intake of water in rivers, which is then stored in lakes, dams, barrages. सबसे पहले दरिया के पानी को डैम्स और बैराज और लेक्स के अंदर स्टोर किया जाता है। स्टेप 2, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ दैट stored water, which includes canals, sub-canals, and especially fields water course. इस मरले में पानी को बैराजीज और डैम्स से खेतों की तरफ लाया जाता है, जिसके लिए कैनाल्स और सब कैनाल्स बनाई जाती हैं। एंड फिल्ड वाटर कोर्स, इसका मतलब ये है कि कैनाल्स के बाद खेत के बीच में से एक नाला पानी का बनाया जाता है जो कंक्रीट का होता है और इसके जरिए खेत को पानी दिया जाता है। स्टेप 3, लास्ट स्टेप इज फिल्ड एप्लीकेशन सिस्टम। इन दिस स्टेप water is supplied to the farms using different method like surface irrigations and sprinkler irrigation etc. इस मरले में खेत को पानी लगाया जाता है। हर क्रॉप्स को अलग तरीके से पानी लगाया जाता है। इस मरले में क्रॉप्स के लिहाज से खेत को पानी लगाया जाता है, जिससे कुछ क्रॉप्स को स्प्रिंकलर यानी छिड़कने, पानी का जो छिड़काव करना होता है, यानी छिड़काव से पानी लगाया जाता है और कुछ क्रॉप्स को सरफेस इरिगेशन यानी पानी ज्यादा मिकदार में इस तरह लगाया जाता है कि मिट्टी में पानी की क्यारियां बनाई जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द
fertilizer and how are they important for crops, and what are farming problems in Pakistan due to fertilizer. You can see on your screen what are fertilizers, are substances added to soil to different plant for increasing the nutrients needed for the better growth of plants. यानी फसलों की बेहतरीन नशोनमा और ज़्यादा मिकदार में पैदा करने के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको खाद भी कहते हैं. You can also see different fertilizer names and how they look like. Now we will discuss why farming needs fertilizers. Demands of fertilizers. In the past, there were few people and demands of crops was less. So animals manure was enough. पहले क्रॉप्स की डिमांड कम होती थी और इस वजह से जानवरों की खाद फसलों के लिए काफ़ी होती थी. यानी जानवरों का जो गोबर वगैरह है उसी वो खाद का काम करता था और वो फसलों के लिए काफ़ी होती थी. बट नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द क्रॉप्स, climate conditions have reduced the fertility of the soil. Animals manures is not enough and artificial fertilizers are required. अब क्रॉप्स की डिमांड बढ़ चुकी है और जानवरों की खाद काफ़ी नहीं है. इसके साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज हो चुकी हैं जो कि क्रॉप्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है. इसलिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़ गई है ताकि क्रॉप्स की प्रॉपर ग्रोथ की जा सके. Now we will discuss about fertilizers in Pakistan. Pakistan have their own natural resources for the fertilizers such as limestone and the natural gas. Currently in Pakistan, there are 6 major producers of fertilizers. The most famous are Fauji Fertilizer Company, Anglo Fertilizer Company and many others. ये कंपनी बहुत ज़्यादा मिकदार में फर्टिलाइज़र पैदा करती हैं, जिसके बावजूद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र बाहर के ममालिक से इंपोर्ट किया जाता है. Let's discuss about the import of fertilizer in Pakistan. There is a huge import of fertilizer in Pakistan. पाकिस्तान ने 2007 में 41 अरब की खाद इंपोर्ट की थी. Fertilizers are mostly expensive. Many other chemicals required for plants plant safety, which includes herbicides and pesticides, which are used for insect killers, etc., are also imported. यानी आप यूं कह सकते हैं कि वो ऐसे कीड़े मकोड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मारने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है और ये अद्वियात जो है ना मोस्टली पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ती हैं. The fertilizers are most important for the growth of plants and almost every crops.
Now we will discuss about the salinity and how it affects the farming in Pakistan. Salinity is the amount of salt dissolved in the body of water, which later on affect the soil as well as badly affect the plant's growth. Soil salinity is the salt content soil which badly destroys farming areas. Special measurements are required to make soil useful again. यानी सॉलिनिटी पानी में साल्ट की मिकदार को कहते हैं, और जब ये पानी मिट्टी में इस्तेमाल होता है तो प्लांट्स ग्रोथ पर असर डालता है. Now let's see how salinity occurs. All natural water has salt in it, and this water covers the farming land. As the hot sun vibrates the water and salt is left behind. And the salt is left behind. After many years, the soil contain excess salt which affect the plant growth, resulting in making the land useless. यानी जो भी पानी हम अपने खेतों तक पहुंचाते हैं उसमें कुदरती तौर पर कुछ साल्ट मौजूद होते हैं. जब ये पानी खेत में इस्तेमाल होता है तो सूरज की तपश की वजह से बहारात बन जाते हैं और साल्ट जमीन में रह जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में प्लांट्स ग्रोथ कम हो जाती है. Now we will discuss the treatment of soil affected by salinity. Wash the soil properly. Use pure water from deep underground well for proper cleaning. Also put the chemicals told by the expert after checking the soil in laboratories. These methods are expensive and mostly farmers could not afford. Let's see Pakistan farmland affected by salinity. तकरीबन 26% पाकिस्तान की फार्मिंग लैंड का हिस्सा जो सोयल सैलिनिटी का शिकार है, जिसमें से 8% जो कि डेजर्ट बन चुका है. स्पेशल गवर्नमेंट plans are required to make these lands useful for agriculture again. This is the end of your today's topic. Let's discuss book questions which you will write in your notebooks. Why is so much more fertilizers is needed on farms today? बेटा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपने अपनी नोट्स बुक पे लिखना है. In the past, when demands for crops was less, the manure from animal was usually enough to keep the field purely fertile. Now the climate conditions and continuous farming have reduced the natural fertility of the soil. So artificial fertilizers are needed for better crops. Also in the areas where land is generally not fertile and the soil is poor quality, fertilizers are needed for better productions. बेटा इसका मतलब ये है कि माजी में जो चूंकि आबादी भी उस वक्त ज़्यादा नहीं होती थी और ज़्यादा काश्तकारी की भी ज़रूरत नहीं होती थी, वो हमारी ज़मीनें
जो इस शाम काश्त करते थे वो जानवरों का जो गोबर है उसी से वही काफी होता था उन जमीनों को जरखेज रखने के लिए। लेकिन अब जो ओवरऑल जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो हमारा माहौल है, जो हमारी दर्जा हरारत है, वो भी तब्दील हुए हैं। और कंटिन्यूस फार्मिंग यानी ज़मीनों को उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए और एक किसी चीज़ की काश्त के बाद दूसरी चीज़ की काश्त जब हम करते हैं तो उसके अंदर कुदरती जो जरहेज़ी है ज़मीन के अंदर, मट्टी के अंदर, वो ख़त्म हो गई है। इस तरह हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जो है, मस्नूई खाद जो हमारी इधर फैक्ट्रियों में तैयार होती है, फॉरेन से मंगवाते हैं, उसकी अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई ताकि हम ज़्यादा फसलें उगा सकें और फसलों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि आल्सो इन द एरियाज वेयर लैंड इज जनरली नॉट फर्टाइल, यानी वो ज़मीनें जो ज़्यादा जरखेज़ नहीं हैं और उनकी मिट्टी जो है वो उससे जरखेज़ी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए हमें खादों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई और उसकी बेहतर प्रोडक्शन के लिए, बेहतर उसकी पैदावार हासिल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बेटा आपने अपनी नीट कॉपीज पे लिखना है और इसको याद भी करना है। लेट्स सॉल्व another questions. Match the term of farming problems in column A with their descriptions in column B. ये कॉलम ए में है बेटा सोयल इरोजन और डिफोरेस्टेशन, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, डीसिल्टिंग। और कॉलम बी में है रिमूविंग सोइल एंड सिल्ट। नंबर 2 excessive salt content in soil. Number 3 soil is washed away. Number 4 cleaning earth's surface of forest. Number 5 excessive water content in the soil. बेटा ये जो कॉलम 1 में है इसका जवाब आपने कॉलम बी के अंदर देखना है, जहाँ ये 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें से एक जो है वो इसका सही आंसर है। और मट्टी का जो कटाव है तो जाहिर है यहाँ आप कॉलम बी में देखेंगे तो सोयल इज वाश्ड अवे, यानी वो मट्टी जो है वो जमीन के ऊपर से वाश्ड अवे चली जाती है, यानी बारिश की वजह से। तो ये इसके साथ मैच करेगा नंबर 3, उसके साथ ए लिखा भी हुआ है इसका आंसर। और बी जो है डिफोरेस्टेशन से, इसको भी देख लें। फॉरेस्टेशन, ये बी, ये आप देख लें, ये क्लीनिंग अर्थ सरफेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलात से जो दरख्तों का कटाव है उससे क्या होता है, जमीन की जो मिट्टी है वो दरख्त जो है ना ये जमीन की मिट्टी को भी रोके रखते हैं और हमें ऑक्सीजन भी मुहैया करते हैं। इसलिए दरख्त जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जमीन के कटाव को भी रोकते हैं। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जहाँ दरख्त नहीं होते वहाँ इस तरह नाले और इस तरह की चीजें बन जाती हैं। तो ये दरख्त हैं, ये जमीन के कटाव को रोकने का भी एक बेहतरीन जरिया है कि जमीन भी वहाँ वो मिट्टी जो है दरख्तों की जड़ों की वजह से महफूज रहती है। तो ये नंबर 4 है, इसका आंसर होगा। अच्छा सी में देख ले वाटर लॉगिंग, इसका जवाब एंड पे है एक्सेसिव वाटर कंटेंट्स इन द सोइल। और इस तरह सैलिनिटी है डी, डी का भी आंसर आपने नंबर 2 जो है एक्सेसिव सॉल्ट कंटेंट्स इन सोइल, यानी मिट्टी के अंदर नमकियात का ज्यादा हो जाना। और ई जो है डीसिल्टिंग, ई का जो फर्स्ट है रिमूविंग सोइल एंड सिल्ट, जो पहला है ये इसका आंसर है। तो बेटा ये भी आपने अपनी नीट कॉपी पे लिखना है
और ये आपकी वर्कशीट में से क्वेश्चन है, आपकी बुक में ये नहीं होगा। और ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अपनी नोटबुक्स में इसको लिखना है और फिर याद करना है। और इसके बाद अब मैं दो और शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपकी अटेंडेंस के लिए भी वो ज़रूरी है। वो आपने जो है अपने नाम और एडमिशन नंबर के साथ वो हल करके भेजने हैं। तो ये दो क्वेश्चन है बेटा। ये जो है व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान फार्मिंग लैंड इज अफेक्टेड बाय सैलिनिटी। और क्वेश्चन नंबर 2 है नेम डिफरेंट फार्मिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस्ड इन टुडे लेक्चर्स। जो भी फार्मिंग के प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आपने लिखने हैं। मैं इसका थोड़ा सा आपको आंसर भी दे देता हूँ ताकि आप ये इजीली कर सकें। और ये आपके अटेंडेंस के लिए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है बेटा 26% ऑफ पाकिस्तान फार्म लैंड इज अफेक्टेड बाय सैलिनिटी। जो परसेंटेज पूछी गई है तो ये 26% है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका उसने फार्मिंग प्रॉब्लम्स वो जो हमने डिस्कस किए हैं, हमने वाटर का डिस्कस किया है, हमने फर्टिलाइजर का डिस्कस किया है और सैलिनिटी ये हमने डिस्कस किया है। तो ये तीन मैंने आपको बता दिए हैं। आपने अपने आंसर में ये आपने लिखने हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो फार्मिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस इन टुडेज लेक्चर्स आर वाटर, फर्टिलाइजर, सैलिनिटी। डियर स्टूडेंट्स, that is the end of your today's lecture. Allah Hafiz.